السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. صدق الله العظيم. معزز سامعین اکرام، اسٹیج پر رونق افروز حضرت حافظ و قاری مفتی صاحب دامت برکاتہم مدد اللہ علیہ کے زیر نگرانی میں چند باتیں پیش کر رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل خیر کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک ساتھ مل جل کر کے بیٹھنے کے توفیق نصیب فرمائی۔ اور اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے، جو میلاد ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جو گھر والے کراتے ہیں کہ لوگوں کو کچھ فائدہ ہو جائے، اور برکتوں کا نزول ہو جائے۔ اب لوگوں کا فائدہ کس طریقے سے ہوگا اور برکتوں کا نزول کس طریقے سے ہوگا کہ جو علماء اکرام آئیں گے، چند باتیں بتائیں گے، اس پر ہم اور آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ایک ساتھی بھی اس محفل سے چند باتیں بھی لے کر کے چلے گئے اور اس پر عمل کرنے لگے تو یہ محفل قابل قبول ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ محفل ایک قبولیت کا ذریعہ بن جائے گی۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کی تعریف و توصیف کی جائے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس ہے۔ ہم لوگ بار بار یہ جملہ سنتے ہیں، لیکن یہ جملہ ہمارے اندر کتنا پیوست ہے، ہم اس کے کتنے حقدار ہیں، اس جملہ کو سننے کے لیے بھی ہم اس کے حقدار ہیں کہ نہیں، یہ کبھی اپنے اندر جھانک کے نہیں دیکھتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اللہ رب العزت ہم جیسے لوگوں کو کہتے ہیں تم بہترین امت ہو۔ آخر کچھ تو ہوگا، اس لیے اس بنیاد پر کہ ہم اتنے گنہگار ہیں لیکن پھر بھی ہمارا نسبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ڈنکے کی چوٹ پر فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہو، بھلائی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو اور اللہ پر ایمان رکھتی ہو۔ لوگ کہتے ہیں بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اصل میں کیا ہے کہ کچھ قومیں ایسی بھی گزری ہیں جو لوگوں کے اندر برائیاں دیکھتی تھی، اپنے ساتھیوں کے اندر برائیاں دیکھتی تھی لیکن انہیں روکتی نہیں تھی۔ لیکن دین اسلام کے اندر اس چیز کی تاکید کی گئی ہے کہ آپ کا بھائی اگر کچھ غلط کر رہا ہے، اگر آپ کا زور چلتا ہے تو آپ ان کو ہاتھ سے روکیے، اس سے بھی اگر زور نہیں چل رہا ہے تو زبان سے روکیے۔ اور سب سے ادنا چیز جو بتایا گیا ہے کہ کم سے کم اس غلط میں شامل نہ ہو کر کے اپنے آپ کو دل کے اندر ہی اس چیز کو غلط مان لیجیے۔ آج لوگوں نے گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا، اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کو ایسا بندہ پسند نہیں ہے کہ جو ہر وقت عبادت میں لگا رہے،
हर वक्त अल्लाह 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 के ज़िक्र लगाता रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत को ऐसा बंदा भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को ऐसा बंदा पसंद है जो गुनाह करे और रब के बारगाह में जाके तौबा करे, वो रब को बहुत ज्यादा पसंद है। किताबों में आया है कि अल्लाह, अगर इंसान हर वक्त अल्लाह अल्लाह के ज़िक्र लगाता रहे तो क्या फरिश्तों की कमी है? इंसान से कई गुना ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा फरिश्ते अल्लाह के जिक्र के लिए मशगूल हैं और जिक्र में मशगूल हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो इंसान बहुत ज्यादा महबूब है जो गुनाह करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में जाके तौबा करे। लेकिन तौबा तब तो करेंगे जब हम गुनाह को गुनाह समझेंगे। एक इंसान गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता है और गुनाह करता रहता है, तो गुनाह को गुनाह न समझना ये सबसे बड़ा गुनाह है। और इसी तरीके से आज के वक्त में लोगों के अंदर दीनी तालीम बहुत कम है। वजह क्या है? अरे हम लोग पढ़े नहीं, हम लोग पढ़े नहीं। अरे एक चीज तो सहाबा का सुनिए, वो सहाबा जो जान तन मन धन से इस दीन के लिए कुर्बान हो गए, क्या 8 साल की उम्र में मुसलमान हुए थे सब सहाबा? नहीं, कोई 20 की उम्र में, कोई 22 की उम्र में, कोई 40 की उम्र में, कोई 50 की उम्र में मुसलमान हुए। क्या उन्होंने दीन नहीं सीखा? हर हाल में सीखा। कहा जाता है, उलमा इकराम ने एक नसब बनाया है कि हर इंसान के जिम्मे फर्ज है और फर्ज के अंदर भी 3 फर्ज है। हर इंसान के जिम्मे फर्ज को अदा करना फर्ज है, लेकिन उस फर्ज के अंदर भी 3 फर्ज है। कहा जाता है कि नंबर 1 जो फर्ज के अंदर जो फर्ज है, जो फर्ज है उस फर्ज को सीखना हमारे ऊपर फर्ज है। जो फर्ज है उस फर्ज को सीखना हमारे ऊपर फर्ज है। कोई इंसान कहता है हम पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल गलत करता है। तुम्हारे लिए फर्ज है, जरूरी है कि तुम जिस तरह खाना खाते हो इस तरह इतना दीन सीखो जिससे अपनी जिंदगी सही तरीके से गुजार सको। और हम दुनिया में आए किस लिए? वमा खलक़ुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किए हैं। लोग सोचते हैं हम खा पी करके मर जाएंगे, 60 साल 70 साल की जिंदगी है, हम पे क्या पूछा जाएगा? अरे एक इंसान कोई नई चीज को इजाद करता है, उसको यूं ही नहीं छोड़ देता। एक इंसान, इंसानी फितरत देख लीजिए, एक इंसान किसी चीज को इजाद करेगा, किसी चीज को अच्छा से बनाएगा। क्या कंप्यूटर बनाने वाले ने कंप्यूटर को यूं ही छोड़ दिया? उससे नफा हासिल नहीं किया। लोग आज नफा हासिल नहीं कर रहे हैं। लाइट बनाने वाले ने लाइट को यूं छोड़ दिया? नहीं। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना बेहतरीन इंसान को बनाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। क्या यूं ही छोड़ देगा इंसान को? उससे कोई सवाल नहीं किया जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। एक एक चीज हमारी रिकॉर्ड हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत, अब कहा जाता है कि लोग इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत को हमारी इबादत की भी जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को हमारी जरूरत नहीं है, हमको अल्लाह रब्बुल इज्जत की जरूरत है। हमको एक शख्स 40 साल तक इबादत किया, 40 साल तक इबादत किया। जब मलकुल मौत आया, रूह कब्ज़ करके लेके गया, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत के जा मेरे बंदे मेरी रहमत से जन्नत में चला जा। हाँ, वो इंसान चौंक गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरी रहमत से जन्नत में जाऊं? मैंने 40 साल तक तेरी इबादत की और तू कह रहा मेरी रहमत से जन्नत में चला जा। अल्लाह रब्बुल इज्जत बोले, अच्छा तुमको 40 साल के इबादत के बदले में जन्नत चाहिए? बोले हाँ। वो सोच रहा होगा 40 साल का इबादत किया, क्या जन्नत मिलेगा मुझे, बहुत अजीम जन्नत मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्ते को बोले, जाओ इसको थोड़ा सा जहन्नम का चक्कर लगवा दो, एक चक्कर इसको जहन्नम का भी लगवा दो। जब जहन्नम का चक्कर लगाने के लिए वो शख्स फरिश्ते के साथ गया तो उसको प्यास लगी। जहन्नम की तपिश, गर्मी, आग का शोला, क्या प्यास लगी। ऐसा लग रहा है कि उसको कि उसका दम घुट रहा है। वो चिल्लाने लगा, शोर मचाने लगा, मुझे 1 गिलास पानी पिला दो। खूब चीखने लगा, वो जोर जोर से चीखने लगा। तो आवाज आई कि 1 गिलास पानी 40 साल की इबादत के इवज में मिलेगा, बदले में मिलेगा। 40 साल जो तुमने इबादत की है उसके बदले में मिलेगा। क्या तुम्हें चाहिए? दम घुट रहा था, लग रहा था अब फिर दोबारा मौत के ऊपर मौत आ जाएगी। उसने कहा पिला दीजिए, उसने कहा पिला दीजिए। 40 साल की इबादत 1 गिलास पानी के बदले, 40 साल की इबादत 1 गिलास पानी में उन्होंने
बर्बाद कर यानी खत्म कर दिया। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने दोबारा हाजिर हुए, जन्नत का चक्कर लगा के एक गिलास पानी पी के। अल्लाह रब्बुल इज्जत बोले देख भाई अब तो तेरे पास कुछ नहीं बचा, तू 40 साल तक इबादत किया लेकिन एक गिलास पानी में तेरा 40 साल का इबादत खत्म हो गया, तो इसके बदले जन्नत मांग रहा था। तो वो गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा है मेरे रब तेरी जलाल की कसम, तेरे रहमत ही से हर इंसान जन्नत में जा सकता है, ये तो ऐसे किसी के बस की नहीं है जो जन्नत में जा सकता है। आजकल लोग बहुत ताकीद करते हैं नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, बिल्कुल हर हाल में इस अमल को करना है, ये हमारे ऊपर फर्ज है। और कहा गया कि फर्ज को मरते दम तक माफ नहीं, फर्ज को मरते दम तक माफ नहीं। लेकिन लोग इस चीज की ताकीद नहीं करते कि हुकूकुल इबाद क्या चीज है। हुकूकुल इबाद किसी को पता ही नहीं, कौन सा चिड़िया का नाम है समझ में आता ही नहीं। हुकूकुल इबाद, हुकूकुल इबाद, अरे हुकूकुल इबाद वो चीज है जिसके कहा जाता है कि लोग क़यामत के मैदान में हाजिर होंगे, लंबी लंबी दाढ़ी होगी, नमाज उन्होंने पूरी जिंदगी कभी छोड़ी नहीं होगी, हुकूकुल इबाद के वक्त में जहन्नम में चले जाएंगे। हुकूकुल इबाद वो चीज है। अब हुकूकुल इबाद है क्या? हुकूकुल इबाद कहा गया बंदे का हक। आज लोग सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में कमजोर है और खुसूसन मुस्लिम कौम, तो बंदे का हक दबाने में सबको शिकायत है। शोहर को बीवी से, बीवी को शोहर से, माँ को बेटे से, बेटे को माँ से, बाप को बेटे से, बेटे को बाप से, सबको सबसे शिकायत है। सब कहते हैं कि ये मेरा हक दबा लिया, लेकिन कोई अपने आप से नहीं सोचता कि मैंने किसी का हक दबाया है, किसी के साथ ज्यादती की है, किसी के ऊपर जुल्म किया है, क्या किसी से बदकोई की है। ये सब हुकूकुल इबाद में दाखिल होता है। अरे भाई कहा जाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, ए मेरे सहाबा तुम जानते हो कि गरीब कौन है, मुफ्लिस कौन है, बेसहारा कौन है? सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन बोलने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो समझता हूँ हम लोगों को तो ये समझ में आता है कि जिनके पास घर नहीं हो, रहने के लिए मकान नहीं हो, सही तरीके से पहनने के लिए कपड़े ना हो, वो गरीब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं सहाबा, ये लोग गरीब नहीं है, गरीब तो वो है जो मैदान महशर में जमा होंगे, नेकियों को पहाड़ लेकर के आएंगे, लेकिन उन्होंने हुकूकुल इबाद में कमी की होगी, किसी को गाली दी होगी, किसी का माल हड़पा होगा, किसी के साथ अदावत और बुग़्ज़ रखी होगी। धीरे धीरे करके सबके अपनी नेकियों में से सबको, वहाँ तो कोई करेंसी नहीं होगी ना, सिवाय नेकी और गुनाह के अलावा करेंसी होगी तो नेकी होगी, और जो जहन्नम में जाने का रास्ता होगा वो गुनाह होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला उस करेंसी यानी कि जो वो हद पहाड़ से भी ज्यादा कहा जाता है कि वो नेकी लेकर के हाजिर होगा और धीरे धीरे करके सब में तकसीम हो जाएगी। एक शख्स के बारे में नहीं है, ये जो भी हुकूकुल इबाद में कमी करता है, जो भी हुकूकुल इबाद में कमी करता है, पंज वक्ता नमाजी हो, हाजी हो, कोई भी हो, लेकिन हुकूकुल इबाद में कमी करने वाला उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक उसका हक ना दे दे। तो ये सबसे बड़ी चीज है। आज हर लोगों को शिकायत है, ऐसा नहीं है कि किसी को किसी से शिकायत नहीं, लेकिन लोग ये नहीं समझता कि हमने किसका हक दबाया, हमने किसका हक दबाया, ये नहीं कोई सोचना, इसको मंजूरी नहीं करता, इसको अपने दिल पे लाना ही यानी गवारा नहीं करता बिल्कुल दिल में इस चीज को लाना कि हमने किसका हक दबाया। लेकिन ये शिकायत मेरा वो हक दबा लिया, मेरा वो हक दबा लिया, मेरा, ये शिकायत सबको रहती है सबसे। लेकिन सबसे जो अहम चीज है, कभी अपने आप में गौर कर लीजिए कि हमने भी किसी के साथ गलत किया है। सिर्फ गलत ये नहीं होता किसी का माल हड़प दिया हो, नहीं, किसी को बदगोई कर, किसी की बदगोई कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलगीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, अलगीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, ये गीबत ऐसा गुनाह है जो जिना से भी ज्यादा सख्त है। किस बुनियाद पर? किस बुनियाद पर? गीबत को लोग गीबत ही नहीं समझते। अरे उसके अंदर है तभी तो बोल रहे हैं। अरे भाई उसके अंदर है तब तुम बोल रहे हो, तभी तो ये गीबत है कि उसके गैर मौजूदगी में तुम उसकी कमियां गिना रहे हो। अगर उसके अंदर वो कमी नहीं होती और तुम उसको गिनवाते जबरदस्ती इसके ऊपर तोड़ते तो वो बुहतान होता। इसका शरीयत के अंदर 80 कोड़े से है। तो गीबत वही चीज है कि इंसान के अंदर वो कमी हो लेकिन उसके पीठ पीछे
اس بات کو, اس جملہ کو اور اچھا خاصا بنا کر کے مزہ لے, اور اس کے اندر یہ کمی ہے, اس کے اندر یہی غیبت ہے. اور غیبت ایسی چیز ہے جس میں مزہ بہت آتا ہے, اور لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے. اس لیے گناہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا, کہ غیبت ایسی گناہ ہے جو زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. لہذا سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے. میں کہہ رہا تھا کہ ہر انسان کے اوپر 3 فرض ہے. ایک ہی فرض ہے لیکن اسی فرض کے اندر 3 فرض ہے, کہ سب سے پہلے جو فرض ہے اس کو سیکھنا پڑتا ہے. نمبر 2, جو فرض ہم نے سیکھ رکھا ہے اس پر عمل کرنا پڑتا ہے. نمبر 3, جو فرض ہم سیکھ رکھے ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں اس کو لوگوں کو سکھانا بھی فرض ہے. آج لوگ سوچ رہے ہیں کیا کہ یہ سب کام صرف عالم علماء کا ہے, کسی کو سکھانا, کسی کو بتانا. ہم لوگ تو بڑی ذمہ ہے, ایسا لگ رہا ہے عالم علماء صرف, ارے جنت میں تو سب کو جانا ہے نا بھائی, جنت میں صرف عالم علماء جائیں گے. کل لوگ کہیں گے ارے ہم کو سکھایا نہیں, ہم کو بتایا نہیں. ارے سب سے بڑی چیز تو بتاتی ہے کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے, اتنا کہ جس سے اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزار لے. لوگ اس پر کوئی محنت ہی نہیں کرتے, ہم تو جاہل ہیں, ہم تو جاہل ہیں. یہ جملہ کب تک چلے گا, یہ جملہ کب تک چلے گا؟ بولتے 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 قبر میں پہنچ جاتے ہیں لوگ. آج نہیں کل نہیں, آج نہیں کل نہیں, آج نہیں کل, کل کل کل, وہ کل جا کے قبر میں ہی پورا ہوتا ہے. ابن آدم, دیکھیے ایک بات بتا دیتے ہیں, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا لوگوں کو اتنی ملتی جتنی مقدر میں رہتی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا پہ محنت کرنا چھوڑ دیں. نہیں, دنیا پہ بھی محنت کرے, لیکن ایک بات, ایک جملہ ایسا ہے جو اس چیز کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے کہ ضرورت کبھی انسان کی رہتی نہیں اور خواہش کبھی پوری ہوتی نہیں. خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مقدس سے جو چیزیں نکل گی وہ 100% سچ اور حق ہوگی. اللہ کے نبی نے کہا ابن آدم کی خواہشات کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتی. تو خواہشات انسان کی کبھی پوری نہیں ہوتی, اور ضرورت اللہ رب العزت کسی انسان کو نہیں چھوڑتا. ہم تو انسان ہیں, ہم تو عقل مند ہیں. اللہ رب العزت کے 18,000 مخلوقات ہیں, اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں بھوکا رکھتا. ہم تو عقل مند ہیں, ہم کو کیسے اللہ بھوکا رکھے گا؟ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ جڑا ہونا چاہیے اللہ رب العزت سے, ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ رزق کا مالک اللہ ہے, رزق کا مالک اللہ ہے, تبھی جا کر یہ چیز پورا ہوگا. جب ہمارا یقین ہمارے اندر آ جائے گا تو ہمارے اندر بہت ساری کوالٹی بدل جائے گی. ہمارے اندر بہت ساری کوالٹی, خواہشیں کم ہو جائیں گی, خواہشیں کم ہو جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین طریقہ بتایا ہے کہ خواہشوں کو مارنے کا, اپنے نفس کو مارنے کا سب سے بہترین طریقہ بتایا ہے کہ تم روزانہ موت کو یاد کرو چاہیے کہ آخر موت ہے, آخر موت ہے. ہم سے پہلے بھی بہت سے لوگ تھے اس دنیا میں موجود, 60 سال 70 سال پہلے بہت سے لوگ تھے, ان کو یقین نہیں تھا کہ ہم مٹی میں مل جائیں گے, لوگوں میں بھول جائیں گے, اور ہم کو بھی یقین نہیں ہے, اور ہم کو بھی یقین نہیں. لیکن حقیقت یہی ہے اس دنیا کی کہ ہم آئے ہیں تو ہم کو جانا ہے, اور ایک دن آنے والی نسل ہم کو یاد بھی نہیں کرے گی, آنے والی نسل یاد نہیں کرے گی. 2 دن سے زیادہ نہیں رکھنا پسند کر رہے لوگ, بدبو آ رہی ہے. اسی دنیا کے پیچھے نہ محنت کر رہے ہیں بابا, کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ اسی دنیا کے پیچھے ساری محنت ہو رہی ہے. آخر میں جس مجلس کا جو انعقاد کیا گیا ہے کہ شادی کے موقع سے, تو ایک قصہ سناتا ہوا چلوں میں کہ عورت اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی دین ہے. مختصر 1-2 منٹ کا ہوگا. ایک عورت بہت جلالی تھی, اس کے جو شوہر تھے نا بہت نیک تھے, بزرگ تھے, اللہ والا. وہ بیچارے ہمیشہ ہر وقت آتے تھے اور بولتے تھے, میں اپنے گھر میں پورے علاقے میں خوشی گھومتے تھے, اور اپنے گھر میں آ کے مایوس ہو جاتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیا حال ہے, کیوں اس طرح کا آپ کا مزاج بن جاتا ہے کہ جاتے ہیں خوش, علاقے میں پورا خوش رہتا ہے, گھر میں جا کے مایوس ہو جاتے ہیں. کہاں بتائیں بھائی, ہر جگہ تو میری تعریف ہوتی ہے کہ اللہ کا نیک بنتا ہے بزرگ کا, گھر میں جاتے ہیں تو بیوی ڈنڈا لے کے کھڑی رہتی ہے, کاہے کا بزرگ, تو کچھ بھی بزرگ نہیں ہے. وہ بزرگ تنگ
भाग रहे क्या करें, छोड़ के एक जमाने के बाद आए, एक जमाने के बाद आए। तो इस जमाने के बाद जब आए तो वो उड़ते उड़ते आए, उड़ते उड़ते आए, घर पहुंचे तो देखे बीवी नहीं है। तो बीवी आई, खाना वगैरह बना के दी, बोली कहाँ थे इतने दिन से, क्यों भाग गए थे, सब माजरा पूछी। उसके बाद लास्ट में बोली कि आप बोलते हैं हम बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, आप बोलते हैं हम बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हमने आपसे भी बड़ा एक बुजुर्ग को आज देखा है जो उड़ उड़ करके आ रहे थे, जो उड़ उड़ करके आ रहे थे। तो वो बुजुर्ग बोले अच्छा, उड़ उड़ करके जो आ रहे थे उन्हीं को तुम देखी हो? बोले हाँ हम उनको देखे। वो बुजुर्ग अरे पगली, वो मैं ही तो था जो उड़ उड़ करके आ रहा था। अरे उस बुजुर्ग को उस हाल में भी उनकी बीवी ने नहीं छोड़ा, कहा अच्छा आप ही उड़ उड़ करके आ रहे थे, तभी तो मैं कहूँ टेढ़े टेढ़े कैसे उड़ रहे थे, टेढ़े टेढ़े कैसे उड़ रहे थे। ये मजाहिया जुमला है, लेकिन इससे बहुत बड़ी सबक मिलती है हम लोगों को कि औरत अगर टैलेंट होना तो मर्द के अंदर गुरूरियत की बू आने से बचा लेती है औरत को। हालांकि बहुत बड़े बुजुर्ग थे, लेकिन घर में आते तो मायूस हो जाते कि मेरी बीवी मुझे कोई अहमियत ही नहीं देती। क्यों? उनके उसकी बीवी के दिल में उसकी बहुत इज्जत थी, लेकिन इस बुनियाद पर नहीं देती थी कहीं मेरे शौहर के अंदर तकब्बुर की बू आने लगे, उसके अमाल का बेड़ा गर्क न हो जाए। तो इसलिए औरत जो भी चॉइस करे, नौजवान आदमी तो दीनदार चॉइस करने की कोशिश करे। मेरी दरख्वास्त है तमाम नौजवानों से, और नौजवानों से और दरख्वास्त है कि अपने उम्र जो वक्त अल्लाह जो सहाबा इकराम के दरमियान गुजरा है नौजवानों की, उस उम्र में शादी कर ले। आज की ये बहुत बुरा माहौल है कि लोग शादी से कतराते हैं। अरे रिस्क का मालिक अल्लाह है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम क्यों अल्लाह की इबादत करते हो? तुमको अल्लाह के ऊपर अगर यकीन नहीं है कि रिस्क का मालिक अल्लाह है तो अल्लाह को तुम्हारी जरूरत नहीं है। यकीन हमारे अंदर होनी चाहिए कि रिस्क का मालिक अल्लाह है। आगे कदम बढ़ाइए, दुनिया के वाहवाही में मत देखिए कि हमारे पास एक घर होगा तब करेंगे, हमारे पास 4 घर होगा तब करेंगे, रह जाइएगा, मरते दम तक नहीं कर पाइएगा। ये भी एक हिम्मत की बात है, और नौजवानों के अंदर इस चीज की हिम्मत कम है। आज के नौजवान गुनाह में ज्यादा मुलविस आसानी से हो जाते हैं, और ये चीज बहुत मुशक्कत वाली है, इसलिए हिम्मत भी कम हो गया है। अब लोग हौसला देने के बजाय कामयाब हो जाओ नौजवान तब करना, तुम्हारा एक घर बन जाए, तुम्हारा नहीं, सरासर गलत है। आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप दीन के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप अपने दीन का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप उसका वक्त में शादी नहीं किया तो नौजवानों से ये भी दरख्वास्त है कि अपने वक्त पर ही शादी करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा है उसमें जो कमी कोताही हुई हो अल्लाह उसको माफ कर दे, और जो सही कहा गया हो उसे हमें और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।